नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपकी हाउस सेरा शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस हाउस सेरा के साथ। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ क्वाटलैंड, सिल्वरटूथ, कैटसी और स्क्वामिश नेशन से। Happy Ram Navami to all of you, from our family to yours. Ram Navami is celebrated with birthday of Lord Rama, who is an incarnation of Lord Vishnu, one of the most popular revered deities in Hinduism, also known as the seventh avatar of Vishnu. He is often held as an emblem with Hinduism for being an ideal king through his righteous, good conduct and virtue. It's 9 days of celebration. April is Sikh Heritage Awareness Month, celebrating diversity, resilience, harmony, and rich culture, tradition, and enduring spirit of the Sikh community. Happy Vaisakhi to all our viewers from our team. Vancouver Nagar Kirtan will take place on Surrey on April 20th. Hope all you can attend. There will be over 500,000 people attending. Watch Asian Pulse TV, where 2 RCMP officers will be talking about children's safety during the Nagar Kirtan in Surrey. The Indo-Fiji Cultural Society of Canada is having Girmitia Day on May 14th at 6 p.m. held at City Centre Library on the 4th floor. Address is 10350 University Drive in Surrey. Refreshments will be served. April is Daffodil Month, a time to fight against cancer and to show your support for those affected by cancer. During this month, major fundraising activity, Daffodil Days, to raise awareness and funds to help combat this disease. अब आपको चलते हैं अपने स्पॉन्सर की ओर। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invest Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. United Pallets and Crates is located at 11585 134 Street in Surrey, BC. Give Sam Dooler a call at 604-760-2028 or call the office number at 604-634-2001. You can also visit the website, which is www.unitedpalletsandcrates.com, or send us email at info@palletsandcrates.com. अब हमारे साथ आ गए हैं विक प्रसाद जी, जो पूरे हफ्ते का न्यूज़ लेकर आ गए हैं। तो चलिए सुनते हैं विक प्रसाद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैंकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फीजी लेबर पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी का कहना है कि अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा को ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष में नहीं लेना चाहिए जिसमें एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस आना मतईदीवा शामिल है। चौधरी का कहना है कि तुरंगा उन कई कोलिशन मिनिस्टर्स में से है जिन्हें उनके कार्यालय में उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों के बाद मतईदीवा ने फाइकक में भेजा था। उनका कहना है कि इतना ही नहीं, वे समझते हैं कि तुरंगा पर पुलिस जांच भी होना चाहिए। चौधरी का सुझाव है कि तुरंगा को एजी के पद से तब तक हट जाना चाहिए जब तक उनके खिलाफ सभी आरोप साफ नहीं हो जाए। चौधरी का यह भी कहना है कि यह पूर्व डीपीपी क्रिस्टोफर प्राइड के मामले में हुआ और सवाल उठाया कि यही नियम बाकी सभी पर क्यों नहीं लागू हो रहा है। फिजी लेबर पार्टी नेता का कहना है कि इलेक्शन सुपरवाइजर आना मतईदीवा की नियुक्ति पर मौजूदा विवाद पर प्रधानमंत्री लगातार मिक्स्ड मैसेजेस क्यों भेज रहे हैं। चौधरी का कहना है कि उनके जनवरी में रंबुका ने मीडिया को बताया था कि नियुक्ति हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि घोषणा करने में देरी क्यों हो रही है। उनका कहना है कि उसी समय एजी ने कहा था कि वे अभी भी कार्यालय के लिए नियम शर्त तय कर रहे हैं।
वह सवाल करते हैं कि 4 महीने बाद भी सरकार सुपरवाइजर इलेक्शंस पद को भरने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह संकेत नहीं दिया कि जनवरी का निर्णय रिव्यू के अधीन आ गया है। नांदी में एक एटीएम को लूटने का प्रयास के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि डिविजनल पुलिस कमांडर वेस्ट सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लकोम्बो वैसेवा ने की है। कथित घटना गुरुवार रात हुई और घटना की जांच जारी है। 3 अभी भी हिरासत में है। शनिवार सुबह नाववा में एक सड़क दुर्घटना के बाद एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित वाइंड्रांड्रा के पास सड़क के किनारे चल रहा था जब कथित तौर पर एक 29 वर्षीय व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले वैन ने उसे टक्कर मार दी। पीड़ित को नाववा अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आप देख रहे हैं देश विदेश की खबरों में। सिडनी के वेस्टविल बोंडाई जंक्शन शॉपिंग सेंटर में कई लोगों को चाकू से वार के बाद अब 6 लोग मारे गए हैं और हमलावर गोली का शिकार हो गया है। छठी पीड़ित जो पुष्टि की गई है कि 36 वर्षीय मां के रूप में है और जो अपने 9 महीने के बच्चे के साथ शॉपिंग स्टोर में चाकू लगने वाले में से थी। 9 महीने के बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने कहा है कि एक व्यक्ति लगभग 3:10 PM सेंटर में आया और 10 मिनट बाद फिर वापस लौट कर आया जो लोगों को चाकू मारना शुरू कर दिया। जनता के सदस्यों से कई कॉल आने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्राप्त वीडियो में रग्बी लीग की जर्सी पहने एक व्यक्ति को चाकू पकड़े हुए दिखाया गया और खरीदार सभी ओर भाग रहे हैं। आप देख रहे फीजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। पिछले सप्ताह वैंकूवर शहर में हुई गोलीबारी में एक लोकल डॉक्टर को गोली लग गई। सूत्रों ने पुष्टि की है कि डॉक्टर को इंटेंडेड टारगेट नहीं बनाया गया था, लेकिन 3 अप्रैल को होमर स्ट्रीट और वेस्ट पेंडा स्ट्रीट के पास शाम 8 बजे के आसपास चेहरे पर गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गोली चलने से पहले बंदूकधारी और डॉक्टर के बीच में शब्दों का आदान प्रदान हुआ। वैंकूवर पुलिस विभाग ने उस समय कहा कि गोलीबारी का बीसी गैंग कॉन्फ्लिक्ट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा कि जांचकर्ताओं का मानना है कि इसे निशाना बनाया गया था। सूत्रों का कहना है कि 46 वर्षीय पीड़ित को ठीक होने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। 30 मार्च को दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद पिछले सप्ताह इलाके में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है जिससे स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। यह गोलीबारी शाम करीब 5:40 PM रॉबसन स्ट्रीट के पास रिचर्ड स्ट्रीट पर हुई थी। पुलिस का मानना है कि गोलीबारी टारगेटेड थी। गुरुवार दोपहर नॉर्थ वैंकूवर में एक ट्रेन ने एक पिकअप ट्रक को टक्कर मार दी। यह घटना माउंटेन हाईवे के पास बैरो स्ट्रीट पर घटी थी। जब ऐसा हुआ तो ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और इस क्षेत्र से गुजरते समय वो अपना हॉर्न बजा रही थी। ऐसा लगता है कि किसी को चोट नहीं आई है। घटनास्थल पर फायर क्रेज और एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद था। आप देख रहे फीजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद की जगत से जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत कुछ खेल इस सप्तांत हुए हैं जिसमें सुब्रेल पार्क लंबासा और नांदी के बीच में जो खेल हुआ उसमें लंबासा की जीत नांदी से 1-0 से हुआ। फिजी एफए ग्राउंड्स पर 1 PM जो खेल हुआ बा और लोटोका के बीच में उसमें बा की जीत लोटोका से 3-1 से हुआ। 3 बजे नावुआ और सुवा के बीच में जो खेल हुआ उसमें नावुआ की शानदार जीत सुवा से 5-2 से हुआ। रातू दकम्बाऊ पार्क नवसोरी और रेवा और ननरोंगा के बीच में जो खेल हुआ 1 बजे उसमें रेवा की शानदार जीत ननरोंगा से 6-1 से हुआ। 3 बजे रातू दकम्बाऊ पार्क नवसोरी में नसीनु और तालेवुनितसिरी के बीच में जो खेल हुआ उसमें नसीनु की जीत तालेवुनितसिरी से 1-0 से हुआ। वैंकूवर कनक्स की ओर देखते हैं तो बुधवार को वैंकूवर कनक्स का जो खेल हुआ उसमें उनकी जीत एरिज़ोना कायोटी से 4-3 से ओवरटाइम में जाकर हुई। शनिवार को जो खेल हुआ उसमें 7 बजे वैंकूवर कनक्स और ओइलर्स के बीच में जो खेल हुआ उसमें वैंकूवर कनक्स की जीत एडमिंटन ओइलर्स से 3-1 से हुआ। मंगलवार को वैंकूवर कनक्स कैलगरी फ्लेम्स के साथ में भिड़ंत करेगा। कनक्स अब अनऑफिशियली पैसिफिक डिवीजन को लीड कर चुका है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है, समाचार है, आप शेयर कर सकते हैं। विक प्रसाद को कॉल कर सकते हैं 604-306-6647 या आप हमारे पास भी कॉल कर सकते हैं 604-537-5123। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और बोला फीजी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस और हमारे गेस्ट है रिजवान अब्बास एंड ही इज आर्कियोलॉजिस्ट। ये बीन ऑन द शो बिफोर
but today we're going to be talking about something different. So, and I will make sure that he introduces किस बात पे आज हम बात करने जा रहे हैं. So, सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. या आप बताइए कि आज हम किस विषय में बात करेंगे. तो आज हम लोग गिरमितिया डे के बारे में बात करेंगे. अच्छा. गिरमितिया डे मई 14 के हम लोग के इंडो फिजियन कल्चरल सोसाइटी ऑफ कनाडा जी शुरू करे हैं. और हम लोग सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में होस्ट करेगा. Okay. 5:30 on May 14th ट्यूसडे के. अच्छा. और सबको मैं पूछे कि गिरमितिया डे या क्या है. हम लोग सब जाने कि गिरमिट डे फिजी में सब कोई सेलिब्रेट करे. तो लास्ट ईयर हम लोग के इंडो फिजियन कल्चरल सोसाइटी जो क्या आप भी एक डायरेक्टर है. Yeah. हम लोग और नो टाइज 1879 पॉडकास्ट के साथ Yeah. हम लोग दुनिया में हमारा नॉलेज से दुनिया में पहला टाइम कोई गिरमितिया डे ऑब्जर्व करीस. राइट. तो ये क्या है ये गिरमितिया डे जो हम लोग ऑब्जर्व करा. हाँ. तो दो तीन चार साल पहले फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर था जी. उसने गिरमिट डे सेलिब्रेट किया. जी. तो वो बोला था स्टेज पर आके बोला था कि आज टुडे वी सेलिब्रेट गिरमिट डे सेलिब्रेशंस फॉर गिरमिट. तो ये सुन के मैंने सोचा कि ये इसका मतलब क्या है कि ये गिरमिट सेलिब्रेशन करना है क्या. ये गिरमिट सेलिब्रेट करो ये इसका मतलब क्या है. तो गिरमिट तो आपको तो अच्छा से मालूम है कि गिरमिट का दूसरा नाम है इंडेंचर्ड लेबर की अग्रीमेंट में से आया है. तो जो हम लोग के जो गिरमितिया एंसेस्टर्स है वो गिरमिट में काम करते थे 5 साल के लिए. और वो गिरमिट जो था वो तो नरक के माफी थे ना. तो मैंने सोचा तो हम लोग क्यों गिरमिट को सेलिब्रेट करते हैं. Yeah, why celebrate? Why celebrate? Yeah, Gilmit? it's a day of observation. Right. कि जो हमारे यहाँ जो forefathers थे, जिसको जिस तरह से इंडिया से उनको लेकर आया था ना हाँ. फिजी में काम कराने के लिए 5 साल तक उन्होंने काम किया. और आपको पता है हिस्ट्री भी कितना हो. राजेंद्र प्रसाद ने बुक भी लिखा था ना. Yeah, I think Tears in Paradise. Yes. Yeah, Tears in something like Paradise. that. तो it's not something कि हम उसको सेलिब्रेट करें. हम कभी किसी की चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते. रिमेम्बरेंस डे हम नहीं सेलिब्रेट करते. रिमेम्बरेंस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं कि thousands and thousands people gave their life and to remember that. गिरमिटिया डे इज द सेम थिंग. कि सेक्रीफाइस जो हमारे पीपल ने किया. तो गिरमिटिया डे ये इस साल लास्ट ईयर भी तो इस साल हम लोग गिरमितिया डे जो मई 14 के है वो दिन रिमेम्बरेंस डे के माफिक हम लोग रिमेम्बरेंस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बात करेंगे अपने गिरमितिया एंसेस्टर्स के बारे में, उन लोगों के सैक्रिफाइस के बारे में, उन लोगों के मेहनत के बारे में, उन लोगों के काम के बारे में, उन लोगों के दुख मुसीबत के बारे में, क्या दुख मुसीबत उन लोग उठाए हैं. तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट गिरमिट एंड सेलिब्रेटिंग इंडियंस इन फिजी हम लोग गिरमितिया के बारे में बात करेंगे. और हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के दादा परदादा लोग कैसे हम लोग के लिए ये रास्ता बनाए. देखो अगर सोचो कि हम लोग कनाडा में आए हैं, हम लोग हिंदुस्तानी लोग और हम लोग के गिरमितिया परदादा दादी लोग का कितना खुशी है हम लोग के देख के कि हम लोग यहाँ कनाडा में कहाँ आगे बढ़ रहे हैं. तो ये इसके कारण हम लोग कनाडा में एटलीस्ट शुरू करते हैं ये गिरमितिया डे के ऑब्जर्वेशन. और इसके लिए हम इसी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं. और अगर आप लोग भी प्लीज़ अगर मई 14 की फ्री है तो मई 14 के ज़रूर आना कि हम लोग के ऑब्जर्वेशन के लिए. और फिर अभी हम शुरू कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग इट एंड वी वांट टू कंटिन्यू. और जो लोग आप देख रहे हैं सुन रहे हैं प्लीज़ हमें या तो फ़ोन करना या रिजवान को एंड देन टॉक अबाउट कि क्या होएगा. It is just a seed we are planting on this year. And that seed can flourish and there are going to be thousands of members. Hopefully one day will belong to that association. But अभी जो है starting, founding जो है अभी हम सोच it took long time to decide that to do it. But it is coming to fruition and please if you don't अभी हमने जो बात किया अगर कुछ भी नहीं समझ में आया call us,
will be able to explain क्या होएगा, right? और अगर गिरमिटिया डे के दिन अगर कोई गिरमिट डे नहीं कहते हैं तो इंडियन अराइवल डे भी कहते हैं कि हम लोग के हिंदुस्तानी लोग इंडिया से फिजी आए हैं और फिजी में आकर कल्चर को और सोसाइटी को कितना बड़ा दिन है। लेकिन उसका भी अगर आप सोचो कि जो 1879 में मई 14 के 1879 के जब वो जहाज से आए थे फिजी, तो सोचो उन लोगों को क्या बीत रहा होगा कि उन लोग से they got tricked, उन लोग से झूठ बोले, उन लोग के लाइन यहाँ पर उन लोग के caste, उन लोग के कल्चर, उन लोग के सब रीति रिवाज सब खत्म हो गया। और फिर वहाँ से उन लोग को कैदी के माफिक, प्रिजनर के माफिक ट्रीट करें, फिर उसके बाद स्लेव के माफिक। तो क्या खुशी है कि हिंदुस्तानी लोग वो दिन आए थे। वो दिन तो बहुत दुख के दिन वो स्पेसिफिक वो दिन जब हमारे परदादे पहला दफा फिजी में आए के अपन गोड़ रखे ना, तो वो दिन बहुत दुख के दिन है। बिकॉज वो दिन के बाद 5 साल से ज़्यादा, जब 1879 से 1920 तक वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा था। तो ये सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर कॉलोनाइजर्स के बारे में बात करेंगे कि वो हम लोग ने क्या किया। बिकॉज हम लोग अगर नहीं बात करेंगे तो और कौन करेगा? कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर हम लेट इट डाई हियर, इट विल बी डेड, बिकॉज हम एक तो दूसरे देश में आकर बैठे हैं ना। तो इट इज वी आर डूइंग ऑन May the 14th from 5:30 to 8:30, और वेन्यू विल बी कंफर्म्ड कि पक्का है वेन्यू? वेन्यू पक्का है ना? पक्का है। आप बताओ, आप ही डायरेक्टर है कर रहे हैं। हाँ, तो वेन्यू सरी सेंट्रल लाइब्रेरी पे 4th फ्लोर पे जो multi-purpose room है, वहाँ पर रहेगा। So how many people can that accommodate? 60 people. Okay, ठीक है। So first come first serve. Please contact us. Yeah, and it's a free event. Yeah. और ज़्यादा जानकारी के लिए किसको फ़ोन कर सकते हैं? आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 778-323-5498। मेरा नाम है रिजवान अब्बास। और आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 604-537-5123। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Camilla. Hi, we are at the Taj Park Convention Center in Surrey, and we are doing a charity fundraising dinner. And I have a special guest that traveled all the way from LA to be with us today to attend this charity event. And he's no other than Alika Cooper, the Trade Commissioner of Fiji, based in USA for USA and Canada. So, sir, talk about you have been back in Fiji. What's new? I guess first I'd like to, Camilla, thank you very much for giving me the opportunity to talk, and also for all the hard work you're doing, being here at the charity event that you guys and your team are working so hard towards. It's really amazing to see what you do, and I thank you. I'm here in Surrey this week because we're planning for the Fiji trade mission that's happening in May. So in May we've got a high-powered investment and trade delegation that's coming from Fiji, and they'll be coming into Surrey. The Fiji trade delegation will be led by our Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Manoa Kamikamica, and will include members from Investment Fiji, members from Fiji's outsourced services, members from the Ministry of Trade. We'll also have partners from the FNPF group, from BSP Life, from the Itauke Trust, from the Itauke Lands, and we'll also have members from the Department of Lands speaking. As part of the Trade and Investment Seminar, we will also have exporters that will be coming to Surrey as well. Exporters will be here to come and see if there's any opportunity to trade. With the seminar, we're working with the communities, we're working with the Surrey Board of Trade, Fiji business leaders and our honorary consul. We're having a trade and investment seminar at the Sheraton Guildford on the 6th of May, where we would, at the forum, all of the speakers would present and talk about, Fiji, where the economy is at, what are the investment incentives, what are the key areas of investments. We'll also have colleagues talking about Fiji's outsourced sector. We'll have colleagues from Fiji Airways that will be talking about tourism in Fiji Airways.
we'll have colleagues. We'll have two of our largest institutional investors, which is the FNPF and BSP, which is some of our largest institutional investors in Fiji. That'll be talking about their projects. We'll have colleagues that'll be talking about leased land and the process to lease land, and we'll have colleagues talking about state land as well. And then there'll be an opportunity to meet and talk with the delegation and to ask questions, right? A lot of the work that we do with the trade and investment seminars is, we're trying to promote Fiji as a unique investment destination, but we're also planting a seed to let people know that, yes, we have all these opportunities to invest in Fiji. So where are you going to start your tour? You told me that big, huge delegation is coming. Is Vancouver the first port that you guys will be here to meet with the ministers, government officials, Surrey Board of Trade, and the leaders? Your tour will start right here? Yes, so we're coming to British Columbia, Canada first, and we'll come to Surrey. We're working with the Itauke Cultural Society to have a welcoming event on Sunday, and once that's confirmed, that'll be put out on social media, and we'll share it with you, Camilla. We're also looking at having a community talano on Sunday evening, and we will also share that information as soon as the venue and times are confirmed. After the investment forum, we will leave Surrey and we will go to San Francisco, where we'll have a similar investment forum in San Francisco, and then our exporters will spend 2 days visiting distributors and island stores in and around the Bay Area, similar to what they would do in Surrey. The delegation on the investment side would then go on to Washington for investment meetings, and then we'd go to Ontario, where we'd have a similar program. And we're very excited to come, and we're very excited to talk about Fiji and to see how we can plant that seed and talk about the investment opportunities we have back home. So the people that are watching you right now, they're thinking about investment in Fiji. They have some bright ideas about that. Do you have all this information that you are telling me on your website that they can contact you directly? So I would suggest come to our Facebook page. Our Facebook page is Fiji Trade Commission North America. You can also come to our website, which is fijitradecommission.com. You can also Google us. My mobile number and email address is all available online. We look forward to hearing from you. I will also share all the information with you, Camilla, and I thank you for your support in promoting this and supporting us. Thank you. Thank you so much for stopping by and saying a few words, and let the community hear what is the purpose of your visit coming to Surrey. It's always a pleasure. Thank you. Vinaka. हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है. Please have your pen and paper ready. Touching Lives Foundation is bringing Mother's Day pancake breakfast and food drive on April 28th from 9:30 a.m. until 11:30 a.m. at St. Mary's Parish Church at 5251 Joyce Street in Vancouver. Proceeds from this pancake breakfast will go to Covenant House, Vancouver. For more information, please call Josie at 778-892-7388 or Neera at 604-602-4684. Saj Community Hub, a non-profit organization offering wrap-around services. They are doing their first annual fundraising gala at Crown Palace Banquet Hall on 12025 Nordell Wayne Street. For tickets and sponsorship, please go on www.asachbc.ca/events. If you are celebrating your loved one's birthday, you can send all the information with their post to fijianfocus21@gmail.com. Thank you to each and every of you who attended our first annual charity event at Taj Park Banquet Hall in Surrey. If you were not able to attend, please do make a donation for Surrey Food Bank. We all had a blast while raising funds for Surrey Food Bank and had so much fun. अब समय हो गया है हमारे जाने का और आपके और हमारे मुलाकात फिर होगी next week. Keep watching Fiji in Focus हर मंगलवार Tuesday at 10 p.m. and on Thursdays at 2:30 p.m. हर रविवार Sunday at 4 p.m. and Alberta में 5 p.m. स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए कमीला को at 604-537-5123 या आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं. हमारे नंबर क्रेडिट्स में दिया जाएगा. अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे हैं. मैं हूँ आपकी होस्ट सैरा शर्मा. चलते चलते एक छोटे से थॉट हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं.
unless you are me in my situation, don't ever tell me how I should feel or act. Author unknown. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग पार्ट ऑफ योर डे विद अस. विनाका. क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को. मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं. For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invest Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. United Pallets and Crates is located at 11585 134th Street in Surrey, BC. Give Sam Dooler a call at 604-760-2028 or call the office number at 604-634-2001. You can also visit the website, which is www.unitedpalletsandcrates.com, or send us email at info@palletsandcrates.com.